اور میرے دیگر دینی و ملی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، تمام تعریف اس وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ بعد درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا۔ سامعین حضرات، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا جمعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں مزید رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ بنیادی طور پہ جو موضوع بتایا گیا تھا کہ دین اور دنیا میں توازن، دین اور دنیا یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ہم کس طرح دین پر آسانی کے ساتھ چل سکتے ہیں، شریعت نے کس طرح ہماری دنیاوی زندگی کے لیے اور اخروی زندگی کے لیے راہیں ہموار کی ہیں، اس تعلق سے ہم نے بہت ساری باتیں دیکھی تھی۔ آج انشاءاللہ مزید باتیں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار پھر ہم صرف اشارہ کر دیں، توازن کا جو سمپل سا مطلب ہوتا ہے کہ بیلنسنگ، سنتولن جس کو ہم کہتے ہیں، کہ تاکہ بگڑنے نہ پائے کوئی معاملہ، ایسا نہ ہو کہ انسان صرف اور صرف دنیا دار ہو کے رہ جائے، دین کو چھوڑ دے، یا ایسا بھی نہ ہو کہ انسان جنگل جھاڑی میں جا کے کٹیا بنا لے اور اللہ کی عبادت کرے اور بولے کہ نہیں میں اللہ والا ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، میں پیر ہوں، فقیر ہوں، صرف اللہ کی عبادت کرے اور دنیا کو چھوڑ دے۔ یہ بھی شریعت میں ممدوح نہیں ہے۔ آپ دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح دین پہ عمل کریں، دونوں ساتھ ساتھ لے کر چلنے کا نام ہی دراصل اسلام ہے، اور یہی دراصل کامیابی ہے۔ جہاں کہیں نہ کہیں انسان کا توازن بگڑتا ہے اور دنیاوی اعتبار سے خسارے کا شکار ہوتا ہے، وہ توحید سے نابلد ہونا، یہ سب سے اہم وجہ ہوتی ہے۔ اور جتنے بھی بگاڑ کے اسباب ہوتے ہیں ان میں یہی مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر ایک انسان توحید والا نہیں ہے، فرض کرو وہ توحید کو نہیں جانتا، وہ اللہ کو نہیں مانتا، اس کے مقابلے میں جو ہوتا ہے، جس کو ہم برادران وطن کہہ لیں، ہم برا کچھ الفاظ استعمال کریں تو بعض بھائیوں کو برا بھی لگتا ہے، برادران وطن جو ہمارے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، زناکاری، بدکاری اور نہ جانے کیا کیا جو کرتے رہتے ہیں، اس کی واحد وجہ ہوتی ہے کہ اللہ کو مانتے نہیں، حساب و کتاب پر ان کا توکل ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قبر میں جانے کے بعد، مرنے کے بعد یا جلانے کے بعد ان کے حساب سے چلانے کے بعد حساب و کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ان کا عقیدہ اور منہج ہی صحیح نہیں ہوتا، جس کی بنیاد پر ان کی بے راہ روی ہوتی ہے اور انسان جو سیدھے راہ پر ہونا چاہیے بگڑ جاتا ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو توحید کو حقیقی معنوں میں نہ سمجھنے کی وجہ سے، انسان کوئی قبر پہ جا رہا ہے، کوئی ہر مہینے مرغا لا رہا ہے، اس کو ذبح کر رہا ہے، وہ کسی چڑھا رہا ہے، کوئی جا رہا ہے قبر پر ہر مہینے درگاہ پہ جا رہا ہے کم سے کم حاضری دینے کے لیے۔ یہ دیکھیے سہولیات جو شریعت اسلامیہ نے دی ہے اور تمام وہ باتیں جو شریعت اسلامیہ نے رکھی ہے، اگر حقیقی معنوں میں کہیں نہ کہیں اس پر انسان عمل کرے تو اس کا دنیاوی اعتبار سے بھی اثاثہ محفوظ رہے گا۔ آپ دیکھیں، بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے یہاں کچھ مسئلہ ہو جائے، بچہ بیمار ہو جائے، آدمی بیمار ہو جائے، کیا کرتا ہے؟ فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ۔ اب وہ انسان سفر کر کے، یہ پوری دنیاوی پریشانی دیکھیے کیسا اس کا سنتولن بگڑ رہا ہے، دین تو بگڑا ہوا ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کا کیسا نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھیے انسان لمبا سفر کر کے جا رہا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، پھر وہ لمبا چارج کرتا ہے، پھر وہ تعویذ بنا کے دے گا، عجب عجب بات بولے گا، اس کو فلاں درخت پہ لگا کے آؤ، اس کو فلاں جگہ رکھنا، اس کو مٹی کے اتنے من کے اندر ڈالنا، اور اس کے بعد روزانہ اس کو دیکھتے رہنا، وہاں پہ کسی کو جانے مت، یعنی کس طرح کی کنڈیشن لگاتا ہے۔ اس طرح کی کنڈیشن اگر ایک انسان اپنی زندگی پر دینی اعتبار سے لگا لے تو ایک انسان صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں اللہ والا ہو جائے، اللہ والا ہو جائے۔ اس بارے میں بڑا مشہور ہے نا کہ کسی نے کوئی تعویذ دیا تو وہ لایا اور اپنی بیوی کو دے دیا، کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، اس کو اپنے دانت کے نیچے رکھ لو، تمام بیماریاں، تمام چیزیں صحیح ہو جائیں گی، جو انبنی یہ دیگر تمام چیزیں رہتی ہے نا، تمام چیزیں ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، اس نے کیا کیا؟ اس کو رکھنا شروع کیا، صبح رکھنا ہے، شام کو رکھنا ہے، وہ ایسے ہی، جب بھی شوہر آئے تو لازمی طور پر رکھنا ہے، وہ ایسے کرتے رہی، یعنی ایک آدھ مہینے کے اندر لڑائی جھگڑا ختم، لڑائی جھگڑا ختم۔ تو بعد میں پوچھا تعویذ کہاں سے لائے تھے؟ تو بتائے فلاں بابا کے یہاں سے۔ وہ فلاں بابا کے یہاں سے گیا، پوچھا اور تعویذ میں کیا تھا؟ ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ اچھا ہو گیا۔ تو بتا رہا صاحب اس میں کچھ نہیں تھا، اس میں کچھ نہیں تھا۔
भाई औरत है, बड़बड़ाती है, उसको अगर दांत के नीचे रख लिया जाए, जुबान उसकी बंद हो जाएगी, वो गुफ्तगू नहीं करेगी, ज्यादा मामला आगे नहीं बढ़ेगा, तो सुकून ही सुकून रहेगा। तो शरीयत ने पहले ही रखा हुआ है कि शोहर घर में एंट्री मारे तो मुस्कुरा कर मिलो, मुस्कुराओ, ताकि कम से कम उसके गम टेंशन दूर हो जाए। शरीयत ने कितनी आसानियां रखी हुई है। तो बात ये चल रही थी कि तौहीद ना जानने की वजह से भी इंसान को कहीं ना कहीं खसारा उठाना पड़ता है, दुनियावी एतबार से भी और उखरवी एतबार से भी। इसी तरह हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आमतौर पे कुरान और सुन्नत की जब बात आती है तो अलग अलग लोग दो इंतहाओं पर होते हैं। सबसे पहले कुरान की बात देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर भी कि वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तमाम लोग मिलकर कुरान को थाम लो मजबूती के साथ। फिर हदीस में भी इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि तुम कुरान और हदीस को मजबूती से थामे रखो, जब तक तुम इसको मजबूती के साथ थामे रहोगे कभी भी गुमराह नहीं होगे। तो वहां तक तमस्सकू, और एक रिवायत में अज़्ज़ु अलैहि बिन नवाजिश, कि अपने दोनों दाढ़ों से कुरान और हदीस को दबा के रखो। बाकायदा ये अल्फाज हैं। अब इंतहा होता क्या है, एक इंसान कुरान को लेके हमारे समाज के अंदर जो बेराह रवी है, कहीं ना कहीं जो संतुलन इंसान खोता है, तवाज़ुन उसका बिगड़ता है। कहाँ तक है, इंसान कुरान है, चूमता है, उसको चाटता है, बसा औकात उसको ताकों में सजा कर रखता है, बसा औकात कब्रिस्तान में जाके कुरान खानी करता है, वहां पे कुरान पढ़ता है, मुर्दे को बख्शवा रहा है और नमाज फातिहा कर रहा है, और ना जाने क्या क्या इस तरह की हरकतें हो रही हैं। और आजकल तो बड़ा ट्रेंड निकला हुआ है कुरान के नाम पे कि नऊज़ बिल्लाह ये गलत हरकत भी है। बाकायदा लोग कुरान के अंदर सुराख करते हैं। आप यूट्यूब के अंदर देखेंगे तो बाकायदा मिलेगा। कुरान के अंदर सुराख करते हैं। सुराख करने के बाद वो जो सुराख का आखिरी हिस्सा, आखिरी पेज पे जहां पे सुराख खत्म होता है, वहां पे देखते हैं वो कौन सा अल्फाज है। वो जो भी अल्फाज होता है उस अल्फाज को नाम रख दिया जाता है, बच्चों का नाम रखते हैं। कहते हैं ये बड़ा मोतबर नाम है कि एक बाबा ने एक तो किया हुआ है और एक तो कुरान का नाम है, कुरान से अलग नहीं हो सकता। ये तो ऐसे ही बात हो गई। मुझे याद आ रहा है हमारे उस्ताद बता रहे थे कि ये पाकिस्तान के अंदर एक आलिम दीन थे। उनका मामला ये था कि वो पहले जमाने में, जो आजकल तो बाकायदा टाइपिंग होता है किताबों को लिखने के लिए, पहले हैंड राइटिंग राइटर हुआ करते थे, किताबों को अपने हाथों से किया करते थे। तो जब भी उनके पास किताबें आती तो वो बंदा क्या करता, हाथ से लिखता। जाहिर सी बात है, लिख रहा है तो उसको पढ़ेगा भी। आजकल तो सिर्फ बोलते जाओ, ये टाइपिंग करते जाता है, अपने आप टाइपिंग हो रहा है, बड़ी आसानियां हो गई, एआई का जमाना है। पहले ऐसा नहीं था। वो बंदा लिखता, जब भी कुछ देखता गलत चीज है तो क्या करता, उसको हजफ कर देता। तो एक बार किसी ने कहा कि देखो ये कुरान का नुस्खा है और इसमें तफसीर किया गया है, इसके अंदर कुछ मत करना, इसके अंदर कुछ, ये मज़ाहिया है, इसके अंदर कुछ मत करना। तो उसने क्या किया, अच्छा ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा। उसने क्या किया, लिखा, कुरान लिखा, कुरान की तफसीर लिखा, सब कुछ लिखा। लिखने के बाद उसने, सामने वाले ने पूछा कि कुछ तो किए नहीं ना, तो कह रहा नहीं, इस बार हमने कुछ नहीं किया, बस मैंने एक काम किया, आप भी खुश हो जाओगे। क्या कहा, आप भी खुश हो जाओगे, मैंने एक काम किया। अच्छा क्या काम किया, कहा कि उसके अंदर जो फिरौन और अबू जहल या इस तरह के जो दीगर नाम है, सूअर खंजीर वगैरह के जो नाम है, कुत्ते के नाम है जो अल्लाह ने जिक्र किया है, कह रहे कि इन तमाम को हमने निकाल दिया है, इन तमाम को हमने निकाल दिया है। जहां पे अबू जहल, अबू फिरौन वगैरह के नाम थे, हामान वगैरह के नाम थे, उस जगह पे मैंने आपके अब्बा का नाम डाल दिया, आप भी खुश हो जाओ। बताइए, तो इस तरह के तवहुमात इंसान करता है कि बताइए, नाम रखने के लिए एक इंसान कुरान के अंदर सुराख कर रहा है, जहां पे नाम आ रहा है वो नाम रख दे रहा है, अजीब अजीब तरह लोग नाम रखने लगे। तो बात यह है कि कुरान इसलिए नहीं आया। कुरान के 4 अहम मकासिद है, तमाम लोग उसको सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। आजकल जो कहीं ना कहीं तवाज़ुन बिगड़ता है ना समझने की वजह से, एक इंसान क्या कर रहा है, बाकायदा आज तो यहां तक ट्रेंड चल चुका है कि अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, हाफिज बनाओ। बहुत अच्छी बात है, हाफिज बनाना कोई गलत नहीं है। बाकायदा बड़े जोर शोर के साथ कहा जाता है कि बाकायदा यहाँ पे इतने हाफिज है, वहां पे इतने हाफिज है। रिजल्ट क्या होता है, शादी हुई, कंपनियों में जॉब लगा, दुबई गए, कतर गए, कहीं और गए, खत्म। दड़मुंडे बने हुए हैं, बेनमाजी बने हुए हैं, कपड़ा टखने से नीचे लटक रहा है, सब भूल के बैठे हुए हैं। क्या फायदा है इसे हाफिज का साहब, कुछ फायदा है? इससे अच्छा तो आलिम बना देते, कुछ सीख लेता। कुरान हिफ्ज करने का मतलब ये होता है कुरान उसको रट लिया, समझता भी नहीं है। जबकि कुरान के 4 अहम मकासद होते हैं। कुरान के 4 अहम, सबसे पहला मकसद ये है कि एक इंसान उसको कसरत के साथ उसको पढ़े। पढ़ने के साथ दूसरा जो अहम मकसद है कि उसको समझे। समझने के साथ साथ जो तीसरा अहम मकसद है कि एक इंसान उस पर अमल करे। फिर अमल के बाद जो एक चौथा मरहला आता है कि जिस तरह तुम अमल कर रहे हो, उम्मत मोहम्मदिया की जिम्मेदारी है, तुमने समझ लिया, तुमने पढ़ लिया, तुमने अमल कर लिया, अब चौथा स्टेप है कि दूसरों तक पहुंचाओ।
दूसरा कुछ पैगाम, तो जहां तक जो इंसान जिस कंपनी में काम कर रहा है वहां भी दो चार बातें अपनी कुरान की बातें कर रहा है, कोई और बातें कर रहा है, कोई कहीं और काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपने शरीयत इस्लामिया को नाफिज करने के तौर पे उसको जहां तक हो सकता है, जो आपको मालूमात है, बल्लिगु अन्नी वलो आयत के तहत जो मालूम है आप उतना आप पहुंचा सकते हैं। कितनी आसानी है। लेकिन कुरान के सिलसिले, कुरान हिफ्ज कराओ, बच्चा 10वीं पढ़ रहा है, रात दिन रात मेहनत भी कर रहा है, इसका ग्रेजुएशन भी हो गया या जो भी उसको डिग्रियां कर रहा था कर लिया, हाफिज भी हो गया, और पता चला दुनियावी मामलात में घुस गया और दीन को बिल्कुल छोड़ के बैठ गया। अगर वाकई कोई बंदा ऐसा है, वाकई कोई बंदा ऐसा है जो दुनिया में भी रह रहा है, दुनियावी मामलात में अच्छे पोस्ट पर पहुंचा हुआ है, कुरान को बरकरार करके रखा हुआ है, अगर सिर्फ और सिर्फ कुरान को समझ रहा है और अपने तौर पे अमल कर रहा है, फर्ज नेमत बहुत अच्छी बात है। कम से कम उसी बहाने वो पढ़ेगा, उसी बहाने कहीं ना कहीं हो जाके हो सकता है बस औकात मुसल्ले पर आएगा, हो सकता है बस औकात वो तरावी भी पढ़ाएगा क्योंकि उसको याद है। तो ऐसा होना चाहिए कि इंसान ये ट्रेंड ना चलाए कि बस हाफिज हो जाए, हाफिज हो जाए, हाफिज बना दो, हमारा बच्चा हाफिज हो गया, हमारा बच्चा हाफिज, हमारा बच्चा 10 पारा को हिफ्ज है, हमारे बच्चे को 20 पारा हिफ्ज है। ये नहीं होना चाहिए। हिफ्ज हो, समझो, ऐसा होना चाहिए कम से कम उसको समझ सके। इसी तरह जो हदीस के सिलसिले में भी, हदीस के सिलसिले में बेराह रवि के शिकार है बाकायदा लोग। बात आती है जब हदीस की तो सोचते हैं कि हदीस ज़ईफ कैसे होती है। बाकायदा लोग ये कहते हैं हदीस ज़ईफ कैसे होती है। ज़ईफ माने क्या होता है आमतौर पे, हम ज़ईफ माने आमतौर पे जो आप डिक्शनरी में मैंने मीनिंग ढूंढेंगे तो आपको ज़ईफ का मतलब होगा बूढ़ा, बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन, जिसको हम कहते हैं ज़ईफ। तो कहते हैं कि ये तो समझ में आता है, हमारे अब्बा बूढ़ा हो गए, हमारे वालिदैन बूढ़े हो गए, हमारे रिश्तेदार बूढ़े हो गए, हमारे दीगर अफराद बूढ़े हो गए, लेकिन ये हदीसें बूढ़े कैसे हो रही हैं, हदीस वो कैसे बूढ़ी होगी, वो तो लिखा हुआ। तो भाई उनको समझने की जरूरत है कि हदीसें एक्चुअल में बूढ़ी नहीं होगी। ये मुहद्दिसीन के एक अलग इस्तिलाह है। ज़ईफ के कई अक़साम होते हैं, मुनक़ते हैं, मुअज़्ज़ल है, और उसके बाद मुरसल है, और उसके अंदर मुनकर है, उसके बाद जो भी दीगर तमाम बातें उसके अंदर आती है। तकरीबन 7 ऐसे अक़साम हैं जो ज़ईफ की कैटेगरी में आते हैं। उसका एक हुक्म नाफिज होता है। ज़ईफ का मतलब अगर हम और आप समझने के लिए यूं समझें कि ये बात ऐसी है जो अल्लाह के नबी से साबित ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं ज़ईफ है। बात समझ आ रही है। सनद का कोई सिलसिले में कोई गड़बड़ होता है, कोई हाफजे का कमजोर होता है, कोई मुरूद के खिलाफ काम करने वाला होता है, अलग वो बहस है। मैं सिर्फ बताना मकसूद ये है कि ज़ईफ जब एक इंसान इस मिंबर मेहराब से बोलता है या एक आलिम बोलता है तो उसका मतलब बूढ़ा नहीं होता, उसका मतलब ये होता है कि वो हदीस अल्लाह के नबी से साबित ही नहीं है, अल्लाह के नबी ने कहा ही नहीं है, ये लोगों ने गढ़ के बना लिया है, इसलिए हम कहते हैं कि वो हदीस ज़ईफ है। बात समझ रहे हैं। अब इस नाम पे कि हदीसें साफ ज़ईफ नहीं होती हैं, अब क्या करता है इंसान, फज़ाइल अमाल भी पढ़ता है। फज़ाइल अमाल पढ़ रहा है, उसमें दरूद के इतने फज़ाइल, उनके इतने फज़ाइल, उनके ये काम, उनके वो काम, वो पीर बाबा ऐसे थे तो वो पीर बाबा वैसे थे। वो इंसान सुन सुन के वैसे ही सुनने की कोशिश करता है जो उसको ये होना चाहिए कि अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को डाला जाए, पीरों और वलियों की मोहब्बत को भर दिया जाता है, और कुरान और हदीस और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को खत्म कर दिया जाता है। ये भी एक इंतहा है कि एक इंसान हदीस को ना समझी की वजह से ना जाने कहाँ कहाँ तो चले जाता है। अच्छा, इंसान ये समझता है कि हम ये फजाइल अमाल पढ़ के बहुत सारे अमाल तो कर रहे हैं, नमाजी भी बन गया है, नमाजी भी बन गया, सब कुछ कर रहा है, यहाँ तक कि चिल्ले भी मार ले। अच्छा, ये चिल्ला भी देखिए क्या अहम ट्रेंड चला हुआ है साहब, बाकायदा। ये तो बस अक्सर सुनने में जो बातें आ जाती है हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, बाकायदा यहाँ तक चला हुआ है। अच्छा, बच्चे का 10वीं हो गया, चिल्ला मारा है, 10वीं हो गया ना, एक चिल्ला लगा ले ताकि दिन भी चला जाए, दुनिया भी हो जाए। ये कौन सा साहब है भाई, 10वीं कर रहा है, 10वीं से फारिग हुआ, चिल्ले में डाल लो। चिल्ले में गया, आने के बाद फिर कहीं उसका माइंड अलग हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, न दीन का रहा न दुनिया का रहा। साहब ये चिल्ला किसने बता दिया है, किसने बता दिया? चिल्ले में आमतौर पे क्या होता है, जाते हैं, दावतें उड़ा रहे हैं, बोरिया बिस्तर लेके जा रहे हैं, तबलीग का काम कर रहे हैं। जानते हो जो अहम पेशा है तबलीग का, ये तबलीग वही शख्स कर सकता है वाकई जो इल्म हो, जिसके पास इल्म हो, जो इल्म को जानता हो। और वाकई अगर आपको सीखना है ना, तो आजकल ये भी ट्रेंड चला हुआ है कि बाकायदा लोग सीखने के नाम पे एक तो इंसान चिल्ला वाला, जैसे मैंने बताया, चिल्ले में भी बता रहा है कि मैं सीखने जाता हूँ। आजकल ट्रेंड चला सोशल मीडिया पे इंसान सीख रहा है। साहब सुधरने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इससे पहले वाला सेशन जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम उसमें हुआ, बाकायदा तकरीबन 1 घंटे का जो प्रोग्राम हुआ, सिर्फ इसी पर फोकस किया गया कि एक इंसान जिससे इल्म को ले रहा है उसको देख ले, उसको जान ले। सोशल मीडिया से तो आजकल कतई नहीं सीखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक इंसान एक वीडियो देखता है ना, हजारों वीडियो आती है, फिर इंसान उस पर क्लिक करता है, थंबनेल देखता है, देख के उसको समझ में आता है, अरे यार ये तो बहुत अच्छी बातें जा रहा है बताने के लिए, इंसान घुसता है तो पता चलता है उसके अंदर कुछ है ही नहीं है। बस औकात कुछ बातें मिल भी जाती, कुछ बातें सही भी होती, कुछ बातें गलत भी होती, इंसान बेराहवी का शिकार होता है, उसका तवाजुन बिगड़ता है, फिर ना जाने कहाँ कहाँ तक भटकता है। तो इल्म को सीखना है,
تو اپنے مقامی علماء کرام سے سیکھو جو قرآن و سنت کا علم رکھتا ہو، یا کم سے کم علماء کی رہنمائی میں رہو. آپ اگر کسی بھی اگر یوٹیوبر کا، کسی بھی مولوی کا، کسی بھی عالم کا، کسی بھی دکتور کا، کسی بھی ڈاکٹر کا اگر کچھ بات سن رہے ہیں اسلام کے نام پہ، تو ضرورت اس بات کے پہلے عالم سے پوچھ لو کہ صاحب میں اس کی تقریر سن رہا ہوں، مجھے اچھی لگ رہی ہے، آپ بتائیں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. اچھا، ایک ٹرینڈ اور بھی چلا ہوا ہے سعودی عربیہ کے عالم. جو سعودی کے عالم ہیں ان کو عالم سمجھتے ہیں، جو ہندوستان کے، پاکستان کے، دیگر ممالک کے جو عالم ہیں ان کو عالم ہی نہیں سمجھا جاتا ہے. ان کو سمجھتے نہیں کہ عالم ہے، ان کو سمجھتے نہیں کہ کچھ جانتا ہے. وہ سوچتے نہیں سعودی عربیہ کی، جبکہ معلوم ہی ہونا چاہیے ہر جگہ کے جو زمانے کے لحاظ سے جو مسائل ہوتے ہیں، جو نوازل جس کو کہا جاتا ہے، جو نئے نئے مسائل ہوتے ہیں، جو جہاں جس کنٹری میں ہوتا ہے وہ زیادہ جانتا ہے. آپ کو میں صرف ایک مثال دے کر آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. رسول اللہ عباس حفظہ اللہ، آپ نے نام سنا ہوگا. مسجد نبوی کے اندر باقاعدہ وہ بیٹھتے ہیں، ان کا درس لگتا ہے. وہ سدھارتھ نگر یو پی کے رہنے والے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ وہ حیات ہیں. رسول اللہ عباس حفظہ اللہ ولا آج بھی زندہ ہے، اور آج بھی ان کے حلقات لگے رہتے ہیں. باقاعدہ وہ ایک بار ان کا پروگرام وہ حیدرآباد میں، کہاں پہ؟ حیدرآباد. لینگویج بھی چینج ہے، بسا اوقات باڈی لینگویج بھی چینج ہوتی ہے، اور بسا اوقات مفہوم بھی چینج ہوتا ہے. انسان بولتا کچھ سمجھتا کچھ ہوتا کچھ ہے. تو ان سے سوال و جواب کا سیشن رکھا گیا، تو اس میں کئی سوالات ہیں، شیخ نے کئی جواب دیے مدلل قرآن حدیث کی روشنی میں. ایک صاحب نے پوچھا کہ ایک مسئلہ بتائیے، تو رسول اللہ عباس حفظہ اللہ سمجھ نہیں پائے کہ مسئلہ کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے، وہ اپنی لینگویج میں استعمال کر رہا تھا. تو اس نے وضاحت کی کہ شیخ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک فلیٹ بنانا چاہتا ہوں، اور اس فلیٹ کے اندر میں یہ چاہتا ہوں کہ کچن میرا ادھر ہو، بیڈ روم ادھر ہو، ہال ادھر ہو، اپنے حساب سے کسٹمائز کرنا چاہتا ہوں. ظاہر سی بات ہے، کون منع کرے گا؟ کوئی منع کر سکتا ہے؟ سمپل سا سوال ہے کہ میں بھائی کچن یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں، بیڈ روم یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں، ہال یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں، کسٹمائز میں کروا سکتا ہوں، بھائی پیسہ میں نے پے کیا، بالکل کر سکتے ہیں، حرج کی بات نہیں ہے. شیخ نے جواب دے دیا. وہاں کے جو عالم دین تھے، وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے، آر کے نور، آپ جانتے ہوں گے ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کے قبر کو نور سے. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا شیخ معاملہ یہ نہیں ہے. کیا کہا؟ معاملہ یہ نہیں ہے. جبکہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں، فتوا کہاں پہ دیتے ہیں، کہاں پہ بیٹھتے ہیں، درس کہاں پہ لگتا ہے؟ مدینہ کے اندر درس لگتا ہے. کوئی بولے گا ارے رسول اللہ عباس صاحب تو کہہ رہے تھے کہ جائز ہے، اور یہ صاحب بولنے کی ناجائز ہے. انہوں نے کہا شیخ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ہمارے حیدرآباد کے اندر اور ہمارے اس ساؤتھ کے اندر ایک چیز عام ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کچن یہاں پہ ہوگا تو برکتیں آئیں گی، کچن یہاں پہ ہوگا تو برا سایہ نہیں ہوگا، کچن یہاں پہ ہوگا تو نظر بد سے ہم بچ جائیں گے. اس عقیدے کے ساتھ یہ بندہ بولنا چاہ رہا ہے، وہ عقیدے کو چھپا رہا ہے، وہ عقیدے کو بولنا نہیں چاہتا ہے. تب جا کے مسئلہ پتہ چلا کہ اگر اس عقیدے کے ساتھ کوئی کر رہا ہے کہ یہاں پہ میرا کچن رہے گا تو میں بلاؤں سے بچوں گا، مصیبتوں سے بچوں گا، شیطان نہیں آئے گا، یا توہمات سے بچوں گا، بد عقیدگی کا شکار ہوتا ہے انسان. تو ایسے توہمات کے ساتھ اگر انسان اپنے بیڈ روم کو ادھر ہیری پھیری کر رہا ہے تو ناجائز ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ مقامی علماء وہ سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ کون سا مسئلہ چل رہا ہے، کہاں پہ کیا مسائل ہے، اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہو سکتا ہے. وہ مقامی علماء جو ہوتے ہیں وہ فتویٰ دیتے. اسی لیے فتویٰ اگر پوچھنا ہو مقامی چیزوں کے بارے میں تو مقامی علماء سے رجوع کرے، جو مقامی ہو، جو وہاں پہ رہتے ہو، جو وہاں پہ درس و تدریس کا کام کرتے ہو، یا جو بھی ہو، جس عالم دین سمجھ لو، امام سمجھ لو، کوئی اور سمجھ لو، جو آپ کے بیچ رہتا اس کے ساتھ جڑ کر رہنے کی ضرورت ہے. سعودیہ عربیہ کا بھی حوالہ دے کے آپ کو کام نہیں چلے گا. آپ جانتے سعودیہ عربیہ کے اندر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں. میرا موضوع وہ نہیں ہے، اس تعلق سے بہت ساری باتیں جب وہ بات چل رہی تھی ایران کی، اور جب بات چل رہی تھی ہمارے جو جن کو ہم نام دیتے ہیں صرف اہل تشیع کی تمام باتیں، شیعوں کی جس کو ہم کہتے ہیں، اس باب میں پوری وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان لوگوں کی حرکتیں کیا ہیں اور کیا کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں سعودی عربیہ کے خلاف، اور کیا ایک الگ ویو دینے کی کوشش کرتے ہیں سعودی عربیہ کے سلسلے میں. اس سلسلے میں صرف ایک بات بتا کے میں ختم کرنے کی کوشش کروں. سعودی عربیہ کے اندر لاکھ برائی ہو، جس کے اندر برائی ہو اس کی برائی کرنا ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں ہم کر سکتے ہیں، اس کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر غلط ہے. لیکن ایک اہم بات کہ وہاں پہ جو توحید کا معاملہ ہے، پوری دنیا کے اندر کہیں توحید ویسا نہیں ہے، اور توحید سب سے ٹاپ لیول پہ ہے. اور پھر میں نے یہیں پہ بتایا تھا کہ اگر ایک انسان کسی ملک میں پائے جانے والی کنٹریز کی اگر برائی کر رہا ہے تو وہاں پہ ذمہ داری یہ بننی چاہیے کہ ایک انسان جا کے وہاں کے حکومت کے ساتھ ملے، حکومت کے پاس جائے کہ حضرت آپ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ مت کرو. یہ تو باقاعدہ جب پوچھا گیا تھا صالح بن عثیمین سے تو کہا تھا، ابن باز رحمہ اللہ کے پاس بھی اس طرح کے سوال آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا یہ غیبت ہے، بہت بڑی غیبت. ہم اور آپ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں نا،
उसके अंदर कुछ बुराई उसके अंदर मौजूद भी हो तो बुराई, शरीयत ने कहा ना उसके अंदर बुराई मौजूद है, आप जाके दूसरों से बयान कर रहे हो। तो सबसे बड़ी गीबत तो ये है कि एक इंसान एक मुल्क के अंदर पाए जाने वाली बुराई को अपने हिंदुस्तान के अंदर बयान कर रहा है। हिंदुस्तान के अंदर पता नहीं कितनी बुराइयां मौजूद है, उसको खत्म करने की कोशिश करो। हर मस्जिद में एक कब्र बना हुआ है, हर मोहल्ले में एक कब्रिस्तान बना हुआ है, हर मोहल्ले में एक मजार बना हुआ है, वो खत्म करने की नौबत तुम्हें नहीं आ रही। हर गली में, हर मोहल्ले के अंदर डीजे बजता है, वो हमें समझ में नहीं आता। हर गली में मूर्तियां रखी हो, उसके बारे में हमें कुछ तंजीम और कुछ बातें रखने की कोशिश नहीं कर पा रहे हम। और आप सऊदी अरबिया को सुधारने की बात कर रहे हैं, किस तरह बेराहरी के शिकार होता है, किस तरह इंसान तवाज़ुन का बिगाड़ उसके अंदर पैदा होता है। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने मुल्क के अंदर रहते हुए अपने मकामी उलमाए किराम से जुड़े, उनसे इल्म को सीखें, उनसे इल्म को हासिल करने की कोशिश करें। इसी तरह जो कहीं ना कहीं एक इंसान दीन पर चलकर दीन भी और दुनिया भी दोनों कमा सकता है, उसमें एक अहम नुक्ता है फजर की नमाज। फजर की नमाज के अंदर एक इंसान देखिए कितनी बहाना साजियां करता है, कितनी हीला साजियां करता है कि साहब मेरी कंपनी में ये होता है, वो होता है। आप क्यों ऐसी कंपनी में पहली बार जॉब कर रहे हो? फजर के अंदर आने के बाद अगर इंसान जिसका बिजनेस है ना, उनको बहुत जबरदस्त एक इंसान के लिए मौका है कि इंसान फजर के अंदर आए। फजर के अंदर एक इंसान आ रहा है, फजर के बाद कितना लंबा अच्छा खासा 2-4 घंटे का उसके पास वक्त होता है, माइंड फ्रेश होता है, एक इंसान हिसाब किताब का मामला करे। जिस तरह इंसान मगरिब बाद इशा के बाद बैठता है, दीगर कंपनियों में इंसान हिसाब किताब करता है, दीगर जगहों पे इंसान हिसाब किताब करता है, फजर भी उसकी हो रही है, माइंड भी फ्रेश हो रहा है, दीन भी इसको मिल रहा है, दुनिया भी उसका मिल रहा है, अच्छा खासा वक्फा भी मिल रहा है, सबको ला रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। और मजीद ये कि उसके पास औकात भी होता है। हमारे यहाँ बच्चे हैं, बच्चों के पास अच्छा खासा वक्त होगा, बाकायदा आप देखेंगे मदारिस के अंदर बाकायदा निजाम होता है, बाज़ मदारिस में, हर मदारिस की बात नहीं करता, तकरीबन अक्सर मदारिस में ये काम होता है कि फजर के बाद एक माहौल कायम किया जाता है। फजर के बाद बच्चे बैठते हैं पढ़ने के लिए, क्यों? फजर के बाद जो मामला होता है ना, बिल्कुल जहन बिल्कुल साफ होता है, और जो भी आप चीजें याद करते हैं ना, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, तमाम लोग अगर कुछ बातें पढ़ते हैं तो वो चीजें माइंड में अक्स कर जाती हैं और उसका एक अच्छा असर जाता है। और फिर एक इंसान जब फजर पढ़ लेता है तो अल्लाह की जिम्मेदारी में आता है। अल्लाह की जिम्मेदारी में आने के साथ साथ मजीद 2 रकात जो सुन्नत पढ़ता है, अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया 2 रकात अगर कोई इंसान सुन्नत पढ़ ले तो दुनिया और दुनिया माफिया के अंदर, यानी दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन तमाम से बेहतर, और पढ़कर उसको तमाम चीजें मिल जाती है, उससे बेहतर होता है। तो फजर के अंदर जरूर आने की कोशिश करें। इसी तरह मैंने तकरीबन 14-15 बातें नोट की थी, मैंने शायद तकरीबन शुदा बातें 7-8 बातें जिक्र करने की कोशिश की है। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने दीन को ना समझी की वजह से और दीन को ना समझने की वजह से दीन को मुश्किल बना दिया है। दीन को कितना मुश्किल बनाया आप देखें, उसमें से एक बात आती है टोपी का मसला बड़ा आता है। इंसान कंपनियों में काम कर रहा होता है, एक अलग लिबास में होता है, उसमें कई मसाइल पेश आते हैं, उसमें से एक में टोपी का मसला जिक्र। इंसान ये समझता है कि टोपी के बगैर नमाज ही नहीं होगी। टोपी को इंसान ने खास कर लिया है। साहब इसमें कोई शक की बात नहीं है, टोपी लगा सकते हैं, लेकिन टोपी को जो आज जीनत का नाम दिया गया ना, बड़ा भोडा नाम दिया गया है। कुरान से दलील दिया जाता है कि जब इंसान मस्जिद के अंदर आए तो बाकायदा जीनत करके आए। फिर बात आती है कि टोपी तो जीनत है, टोपी जीनत है, टोपी जीनत है। शादी में जाओगे टोपी पहन के, जिस दिन आपकी शादी होगी टोपी पहन के जाओगे, वो तो एक निकाह के लिए बाकायदा साफा वाफा बांध के एक सुन्नत बाकायदा अदा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो भी गलत है। वरना तमाम जो शराब कबाब जितने भी चीजें होती है, जहां की अय्याशी की चीजें होती है, इंसान चश्मा लगाता, सूट बूट पहनता है और अच्छे से इधर उधर मार के आता है। यहाँ पे तो बाकायदा टोकरियां बनी होती है, न जाने कितने महीनों की टोकरियां पड़ी होती है, गंदी टोपियां होती है, उसको उठाया जाता है, हर कोई पहन रहा होता है और आके नमाज पढ़ रहा होता है। सिर्फ मस्जिद के लिए साहब, ये हमारे और आपके लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है। हम अपने दीगर भाइयों की बात नहीं कर रहे, हमारा खुद मामला है। हमारे खुद, अगर मैं साफ लफ्ज़ में कहूं, हमारे अहले हदीसों का भी मसला है। मस्जिद के अंदर आएंगे, टोपी लगा लेंगे, मस्जिद से अभी गेट से बाहर नहीं निकले हुए साहब, अभी सिर्फ मस्जिद की एंट्री से बाहर हुए हैं, टोपी अंदर जाती है। क्या है? यानी आपने नमाज के लिए खास करके रखा हुआ, नमाज के लिए टोपी है, तो नमाज के लिए टोपी नहीं है साहब। नमाज टोपी अगर आपको लगाना है, बाल को ढकना है, शरीयत का एक हुक्म है और कहीं ना कहीं इस्तेहबाब में दाखिल है, इंसान बाल को ढक करके रखे हमेशा, सिर्फ नमाज में नहीं। हाँ, औरतों के लिए खास तौर से कहा गया है कि उनकी नमाज नहीं होगी इल्ला ये कि वो अपने सरों पर दुपट्टा डाल लें। ये औरतों के खास मसाइल में से हैं। औरतों के बाल अगर नजर आ रहे तो उनकी नमाज नहीं होगी। हमारा तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। बाकायदा अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रवायत है, उन्होंने बाकायदा, उनके पास कपड़ा भी था, और सारे लोग कहते हैं ना कपड़ा नहीं, कपड़ा भी था, बाकायदा उन्होंने कपड़े को निकाल के नीचे रखा और 2 कपड़ों में नमाज पढ़ के बताया। नमाज पढ़ने के बाद कहा कि आपके पास वो कपड़ा अमामा था, आपने नीचे क्यों रख दिया? कहा कि मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम जैसे लोग बाद में ये ना लोग समझ लें कि बाकायदा सर को ढकना भी वाजिब है, सर को ढकना भी जरूरी, सर को ढकना जरूरी नहीं, आप वैसे भी नमाज पढ़ लेते हैं। कितना ट्रेंड चला हुआ साहब,
वही दस्ती घिसी पिटी दस्ती होती है। मैं अगर कोई पहना हुआ है तो माजरत चाहूंगा उनसे। बात ये चल रही कि वही दस्ती होती है, उनसे इंसान नाक भी साफ कर रहा है, छींक आ रही है, वो भी लगा रहा है, यहाँ वहां सब भी साफ कर रहा है, हाथ भी साफ कर रहा है, और जब नमाज में आए तो वही दस्ती बांध लिया, मुड़ वही बांध रहा है। क्या है ये हम दीन का मजाक बना के रखा हुआ हमारा आपने। और फिर इसको यहाँ तक, इसकी सख्ती यहाँ तक जाती है कि इंसान जब कंपनियों में काम कर रहा होता, कहीं और काम कर रहा होता, टोपी तलाश करता, कुछ मिल नहीं होता तो सोचता अब टोपी है नहीं तो नमाज कैसे पढ़ूं, अब टोपी है नहीं तो मैं नमाज भी छोड़ देता है। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग कंपनियों में काम कर रहे होते हैं, बेचारे मोजा पहनते हैं और उसके बाद एक बड़ा सा जूता भी पहनते हैं, तो इंसान सोचता है कि जब तक मैं निकालूंगा तो मैं काम पे जाऊंगा, इतना लंबा वक्फा हो जाएगा, तो इंसान छोड़ देता है। दीन को ना समझने की वजह से, मुश्किल समझने की वजह से इंसान उसको छोड़ देता है, जबकि शरीयत का तकाजा है। मैं बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ, जो लोग कंपनियों में काम करते हैं, कहीं और काम करते हैं, जो इस तरह के मसाइल से दो चार होते हैं, कि भाई चाहे चमड़े का मोजा हो और चाहे जौरब हो, खुफैन का भी लफ्ज है। बहुत सारे लोग हमारे हवा देने की कोशिश करते हैं, हमारे दीगर भाई, कि सिर्फ चमड़े के मोजे पे मसा है, ऐसा नहीं है। चमड़े के मोजे पे मसा है और किसी भी चीज का, कपड़े का अगर बना हुआ या दीगर और चीज का बना हुआ जिसको हम जौरब बोलते हैं, तो जौरब और खुफैन दोनों अगर इंसान पहना हुआ है, उसका काप, उसका टखना अगर ढका हुआ है, तो इंसान उससे मसा कर सकता है। बस शर्त यह है कि वजू बना के रहे। अब अगर इंसान, तरीका क्या है, कंपनी में जा रहा है जॉब के लिए, तो सबसे पहले तरीका यह होना चाहिए कि एक इंसान वजू बना के जाए। फ्रेश होकर वैसे भी जाता है, वजू बना के जाए। वजू बना लिया, वजू बना के जा रहा है। अब इंसान गया 9 बजे 10 बजे ड्यूटी उसकी लगी, तो पेशाब तो हो गई, तो वजू तो वैसे टूटेगा। लेकिन ये एक फायदा ये होगा, वजू बना के आप गए हुए हैं, कि आपको अब उस मोजे को निकालने की जरूरत नहीं है साहब। इसलिए जूता, आमतौर पर बड़ा बड़ा जूता होता है, तो जूते भी मसा कर सकते हैं साहब, जूते पे भी आप मसा कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि टखने से ऊपर होना चाहिए। टखने से अगर नीचे जूता है तो उसमें मसा नहीं होगा, टखने से ऊपर जूता है, आप उसमें मसा करो और उसी में नमाज पढ़ो। जूते में नमाज पढ़ो साहब, अल्लाह के नबी नमाज जूते में। अगर आप कंपनियों में आप ढूंढते कि निकालेंगे, ये होगा वो होगा, देर होगा, हमारी नमाज छूटेगी, आप वक्त पे पढ़ लो, कितना मिनट लगेगा साहब। जिस तरह हम पानी पीने के लिए जाते हैं, इस तरह हम पेशाब करने के लिए जाते हैं ना, कोई कंपनी वाले शायद मना ना करे, इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। ऐसी अगर कंपनी है तो शरीयत का ये हुक्म है, सबसे पहले एक इंसान अपना बंदोबस्त करने की कोशिश करे, धीरे धीरे वहां से रफू चक्कर होने की कोशिश करे, ऐसी जगह पे जाने की कोशिश करे। मैं रोहा के अंदर एक साहब को जानता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त का नमाजी है, कभी उनकी नमाज नहीं छूटती है, कंपनी में काम भी करते हैं। बहरहाल बात ये चल रही थी, इंसान कंपनियों में काम रहते हुए भी एक इंसान दीन पर आसानी के साथ अमल कर सकता है। तवाज़ुन नहीं बिगाड़ना चाहिए कि इंसान में मैं दीन दुनिया में लगा हुआ हूं तो दीन पे कैसे अमल करूं। इसी तरह एक बात आती है पेशाब का मसला। पेशाब का मसला ये होता है, आमतौर पे कंपनियों में वो कुमुट वाला बना होता है, इंसान बैठने की कहीं जगह नहीं होती है, इंसान सफर कर रहा होता है, ट्रेनों में भी वही मसला होता है, फ्लाइट में भी आपने देखा होगा, फ्लाइट में भी वही मसला होता है, इंसान बैठे तो इंसान कहीं ना कहीं नापाकी का खदशा होता है। तो शरीयत ने इजाजत दिया साहब, अल्लाह के नबी ने खड़े होकर पेशाब किया, खड़े होके मजबूरी में एक इंसान पेशाब कर सकता है। शर्त यह है, बस शर्त यह है कि पेशाब का छींटा कपड़े में ना पड़े। इंसान पहना हुआ है, सूट बूट में सब कुछ है, और इंसान सोचता है कि अगर बैठूंगा तो खदशा है कि कुछ लग जाए, कुछ और मसला हो जाए, इंसान खड़े होकर पेशाब कर ले, टिश्यू रखा। और ये भी सुन ले, जरूरी नहीं कि इंसान सिर्फ पानी का इस्तेमाल करे। हमारे उस्ताद जो अल्लामा अलबानी के शागिर्द रशीद है और बाकायदा आज भी वो बहयात है, डॉक्टर अब्दुल बारी हफिजुल्लाह वरा, जामिया इस्लामिया दरियाबाद के बानी मुबानी है, आज भी वो जिंदा है। बाकायदा उन्होंने यहां तक हवाला देते हुए जिक्र किया है कि एक इंसान मट्टी से, पत्थर से, लकड़ी से, टिश्यू से, जिस चीज, कपड़े से भी, जिस चीज से भी इंसान उसको जाहिर कर दे, बस उसके अक्स को खत्म कर दे, इंसान उसमें नमाज पढ़ सकता है, वो पाक हो जाएगा। भाई पहले जमाने में जो शरीयत का हुक्म था वो क्या था, पत्थर से साफ करो, पत्थर से। और पहले जमाने में पत्थर कैसा होता था, आज भी अरब कंट्री में जाए तो पत्थर आपको कैसा मिलेगा, लेकिन चूंकि वो ऑब्जर्व करता है, वो सोखता है, वो कहीं ना कहीं पानी को खींचता है, पानी को खींच लिया, आपका सूख गया, आप उसमें नमाज पढ़ो, आप वजू करके नमाज पढ़ो, कोई मसला नहीं, आपको नहाने वाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इंसान अगर खड़े होकर भी पेशाब करे वक्त जरूरत तो कर सकता है, बस शर्त यह है कि एक इंसान ये ख्याल रखे कि कहीं छींटा उसके ऊपर न आ जाए। ये और बात है कि हद इम्कान यही कोशिश होनी चाहिए कि बैठ के पेशाब करें, क्योंकि आजकल जो सलसलुल बौल, जो कहीं ना कहीं हमारी और आपकी शिकायतें होती है कि साहब मैं क्या करूं, बार बार पेशाब निकलते रहता है, उसकी एक वजह यही होती है कि इंसान खड़े होकर कहीं ना कहीं पेशाब करता है। बैठ कर पेशाब करने से ना साइंसी भी फायदे, शरीयत का भी तो है, शरीयत का हुक्म भी तो है कि आप बैठ कर पेशाब करें, साथ ही साथ साइंसी फायदा क्या है, ग्रेविटी। जो ग्रेविटी यानी जमीन के अंदर जो कशिश है, जो न्यूटन का लॉ है, लॉ ऑफ न्यूटन, उसने जो कानून बनाया, जो 3 न्यूटन के जो लॉ है, उसमें से एक अहम कानून उसका है कि जमीन अपने अंदर कशिश रखती है, वो खींचती है, उसके अंदर ग्रेविटी होती है और वो खींचता है। जब इंसान बैठता है, पेशाब करता है, जितना करीब होगा उतनी ज्यादा वो ऑब्जर्व करता है और आसानी के साथ पेशाब उसका पूरा बाहर हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है, और साथ ही साथ साहब पेशाब का कोई भी कतरा आपके पेट के अंदर मौजूद नहीं रहेगा।
پورا صاف ہو جائے گا. تو ضرورت اس بات کی کہ اس طرف بھی توجہ دیں. شریعت پر انسان عمل کرے گا نا تو دنیا کا بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا. لہٰذا اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح آج کل ہمارے یہاں دیگر لوگوں کے اندر جو رائج ہے عربی میں خطبہ دیا جاتا ہے صاحب, عربی میں خطبہ, جبکہ دنیاوی بھی نقصان ہے اور اخروی بھی نقصان ہے. عربی میں اگر خطبہ دیا جائے تو پہلا تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو خطبات رٹو توتا ہوتے ہیں, وہ رٹے رٹائے کچھ مستقل خطبے ہوتے ہیں اور پھر وہی بیان, کیونکہ بندہ سمجھ نہیں رہا ہے تو بس بولنا ہے. کوئی بھی وقت ہوتا ہے بھائی, رمضان کا وقت چل رہا ہے تو پتہ ذوالحجہ پہ بولا جا رہا ہے, نہ جانے کیا کیا باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں اور بیان کیا جا رہا ہے. تو شریعت کا تو آپ سعودی عربیہ کا بار بار حوالہ دیتے, سعودی عربیہ کے اندر جائیں جہاں جس لینگویج میں باقاعدہ سعودی عربیہ کے اندر کئی جگہوں پہ باقاعدہ کہیں بنگالی میں خطبہ دیا جا رہا ہے, کہیں اردو میں خطبہ دیا جا رہا ہے, کہیں کسی اور زبان میں خطبہ دیا جا رہا ہے. یہ رائج کیا گیا تاکہ لوگ سمجھیں. خطبہ کا مطلب ہی ہوتا ہے افہام و تفہیم, لوگ سمجھ سکیں. انسان سمجھے گا نہیں تو فائدہ کیا ہوگا. اسی طرح میں کچھ باتیں اور بھی کرنا چاہوں گا 2-4 منٹ. جیسے آج کل خصوصاً ہمارے عورتوں کے لیے, ویسے یہ اس میں ہم اور آپ بھی شامل ہیں, کہیں نہ کہیں ہماری بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. عورت اور تعلیم کا مسئلہ, عورتوں کو ہم نے تعلیم سے بڑا پیچھے رکھا ہوا ہے اور بعض ہم نے جو توازن کھو دیا ہے کہیں نہ کہیں مخلوق تعلیم دے کے, ہم دونوں خیال نہیں کر پاتے. ہم تعلیم دیں, ضرور تعلیم دیں, اور اسلام نے تعلیم سے بالکل نہیں روکا, آپ ان کو ضرور تعلیم دیں کیونکہ آج کل ضرورت بھی ہے. اور عبد المعید مدنی حفظ اللہ آتے رہتے ہیں باقاعدہ, انہوں نے بھی فتویٰ دیا کہ آج کے دور میں واجب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی لیڈی ڈاکٹر ہو جو ہمارے سماج کی, ہمارے لوگوں کی, ہمارے ماؤں اور بہنوں کا علاج کر سکے. لیکن آج کل ہم نے جو بے راہ روی اختیار کر کے رکھی ہوئی ہے, ہم ٹاپ لیول پر جانے کے لیے, ہم بڑے سے بڑی ڈگریاں لینے کے لیے ہم مخلوط تعلیم دلاتے ہیں. ایک بچہ بھی ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے, بچی بھی ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہے اور تعلیم مل رہا ہے. صاحب ایسے کیمپس کا تلاش کریں, ایسے کیمپس کا نظام کریں, ایسے کیمپس کو تلاشیں. ہم اور آپ کی پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ سب لوگ مل کے ایسے ہاسپٹل اور ایسے کیمپس تیار کریں جہاں پہ صرف اور صرف بچیاں ہی پڑھیں, برقعے کے ساتھ پڑھ سکیں, آمد و رفت میں کوئی پریشانی نہ ہو, اور ساتھ ہی ساتھ اچھی ڈگری بھی ہم حاصل کریں اور اچھی ڈگری بھی دے سکیں تاکہ ہمارے امت مسلمہ کی اچھے انداز میں صحیح معنوں میں رہنمائی ہو سکے اور انسان بہت ساری باتوں سے بچ سکے. اسی طرح عورت اور تجارت کا بھی مسئلہ ہے. عورت اور تجارت, ہم اور آپ بھی اس میں باقاعدہ بہت سارے ہمارے ناپسمجھی میں آ جاتے ہیں. ہمارے دیگر بھائی باقاعدہ سعودی عربیہ پر تانا دیتے ہیں کہ وہاں پہ باقاعدہ عورتیں بھی ڈرائیونگ کرتی ہیں, پہلے پرمیشن نہیں, تب اب پرمیشن دیا گیا ہے, جبکہ جائز پہلے سے بھی تھا اور آج بھی جائز ہے. شریعت میں بھائی پہلے زمانے میں سواری کی جاتی تھی, سواری تو کون کرتا تھا؟ عورتیں بھی کرتی تھی, مرد بھی کرتے تھے, دونوں حضرات سواری کرتے. تو آج اگر سواری کر رہے ہیں تو سواری کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ چل رہا ہے تو چلا بھی رہا ہے. تو اگر کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے, کوئی لیڈی ہے اور وہ چلا رہی ہے کسی گاڑی کو, تو کیوں نہیں کر سکتی صاحب؟ بالکل کر سکتی ہے. ایسے تجارت کا بھی مسئلہ, بعض صحابیات کے بارے میں ملتا ہے ان کا روزی روٹی کا کوئی تھا ہی نہیں, تو وہ باقاعدہ تجارت میں لگی ہوئی تھی اپنے اپنے اعتبار سے, لیکن اپنے اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے. اس کا باقاعدہ تمام ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورتیں بھی دینی تعلیم کو سیکھ سکتی ہیں اور تجارت میں جا سکتی ہیں اور دیگر معاملات وہ کر سکتی ہیں, بس شرط یہ ہے کہ پردے میں رہے, مرد و زن کا اختلاط نہ ہو. ایسی تعلیم بھی ان کو ہم نہ دیں کہ غیروں میں جانا پڑے. اب عورت ہے کمپنی میں کام کر رہی ہے, کیوں صاحب؟ مرد عورت جہاں پہ مخلوط ہے, گرچہ آپ پردے میں ہوں تب بھی ایسی جگہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں بھائی. آپ MBBS کر لیے, آپ نے اچھا خاصا سب کچھ کر لیا ہے, آپ ڈاکٹر بن گئی, آپ نے پیتھولوجی کو کھول لیا اور آپ نے بڑا اس میں اندر بنا دیا, صرف عورتوں کے لیے آپ نے انٹری مارا کہ بھائی صرف عورتیں یہاں پہ آئیں گی. میں تو کہتا ہوں کہ ڈیلی بیس پہ سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں آئیں گی آپ کے پاس. ایسے ڈاکٹر کی سخت ضرورت ہے, مسلمان ڈاکٹروں کی میں بات کر رہا ہوں. اور عام طور پہ ہند اور ہمارے برادران وطن ہے جہاں لیڈی ڈاکٹر ہوتی وہیں پہ ہماری عورتیں جانے کی کوشش کرتے. اگر ہمارے اندر ہو تو کیوں نہیں آئیں گی؟ اب خاص کریں, مختص کریں, یعنی ایسی چیز کو تلاش کریں. ابھی سلائی کا مسئلہ ہے, سلائی کا مطلب ایک انسان اگر کرنا چاہتا ہے بڑے اچھے پیمانے پہ کھول لے اور انسان یہ بورڈ لگا دے کہ بھائی صرف عورتوں کا رہے گا, صرف عورتیں آئیں, عورتیں اس کے پاس جائیں, عورت کر رہی ہے, اس کا بزنس بھی چل رہا ہے, کاروبار اچھا خاصا چل رہا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں وہ اپنے انداز میں انسان سوچ سکتا ہے. انسٹیٹیوٹ چلا لے, اچھے پیمانے پہ انسان چلائے, صرف عورتوں کو رکھے, اس کا دیکھنے والے بھی عورتوں, سب کچھ وہی ہو, کیا دقت ہے؟ بہت اچھی بات ہے. ایسے انسان جو بھی چاہے کر سکتا ہے. عورتیں بھی تجارت کے میدان میں آ سکتی ہیں, بس شرط یہی ہے کہ پردے کا خیال رکھیں, مرد و زن کا اختلاط نہ ہو اور حرام تجارت نہ ہو. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ہماری مائیں اور بہنیں جو مخصوص ایام سے گزر رہی ہوتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے لیے سب کچھ ختم ہو گیا. آج کل بڑی آسانیاں ہیں, علماء نے فتوے دیا ہیں, جس میں ابن العثیمین, ابن باز رحمہ اللہ کا جو فتویٰ موجود ہے کہ آج اگر کوئی عورت مخصوص ایام سے گزر رہی ہے تو اس کے لیے ذکر و اذکار منع نہیں ہے, اور آج کے لیے سب سے بڑی آسانیاں ہوگی, قرآن بھی پڑھ سکتی ہے. ہاں صاحب, کیونکہ اس کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس میں بھی بہانہ کرتے ہیں
कि मैं वजू नहीं हूँ, कहाँ से क्या करूँ, मेरे पास टाइम तो होता है लेकिन क्या करूँ, वजू के लिए पानी वहां पे जाओ, ये करो वैसा करो, तो ऐसा नहीं हो पाता, मैं कंपनी में होता हूँ। साहब कुरान पढ़ने के लिए वजू शर्त नहीं, अगर वजू कोई कर ले तो अच्छी बात है, पाक साफ रह के कुरान की तिलावत करनी चाहिए। लेकिन औरतों के लिए खुसूसन जो मैं बयान कर रहा था कि औरतें एक मोबाइल पर कुरान पढ़ें, क्योंकि ये मुसहफ का हुक्म नहीं है, मुसहफ का मामला अलग है। यानी जो कुरान जो दफ्तैन मौजूद होता है, हम अपने हाथों में लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, उससे ना पढ़े, जो याद है वो भी पढ़ सकती हैं, और मोबाइल ले, मोबाइल के ऊपर वो हुक्म नाफिज नहीं होता है। यही वजह है कि एक इंसान उस मोबाइल को लेके, क्योंकि उसमें कुरान भी होता है, पूरा कुरान, पूरी तफसीर, पूरी हदीस होती है, वो इंसान उसको लेके लेटरिन में भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अक्स तौर पे कुछ होता नहीं है एक्चुअल में। अगर आप उसको तोड़ फोड़ के देखने के लिए जाए कि कुरान के अल्फाज किधर आपको मिलेंगे नहीं, वो तो डिजिटल है, वो तो डिजिटल है, वो तो हमको बस सिर्फ देख रहे, हमको दिखाया जा रहा, हकीकत में वो है नहीं। इसीलिए आप उस मोबाइल को लेके, औरतें भी मर्द भी, जो इंसान जिस कंडीशन में हो, नापाक हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, एक इंसान कुरान को ले, मोबाइल अपने हाथ में ले, जिस तरह फोन से बात करता है वैसे एक इंसान अपने स्क्रीन सामने रखे और उसको पढ़ता चले जाए। कितनी आसानियां शरीयत में, जिक्र अस्कार से तो नहीं रोका गया। इस तरह मैं एक आखिरी बात कह के खत्म करने की कोशिश करूंगा, और भी बहुत सारी बातें थी लेकिन आखिरी बात कह के खत्म करूंगा कि आजकल कहीं ना कहीं जो इंसान दीन से दूर होता है और दीन पे सही मानों में अमल नहीं कर पाता है, वो जो कहीं ना कहीं दीन इल्म की कमी होती है, उस इल्म की कमी में एक अहम बात जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि औरतों के लिए मस्जिद में पाबंदी लगा देना। एक इंसान जब मसाजिद के अंदर औरतों के लिए बंदोबस्त नहीं करेगा, आप सोचें, दीन से तो कट जा रही है बिल्कुल, वैसे ही नाबलद होती हैं, हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं, हमारे बच्चों का कोई खास तालीम नहीं हो पाता है। और मजीद ये कि आपके लिए समझना आसान है, ये टूरिस्ट प्रदेश है, सब जानते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। जाहिर सी बात है, जो इंसान दूर दराज से आता है तो फैमिली के साथ आता है। और जो फैमिली के साथ वो बंदा आएगा, वो नमाज का वक्त होगा, जाहिर सी बात है, कहां पे जाएगा नमाज पढ़ने के लिए? अगर वाकई अगर मस्जिद ना हो तो इंसान समंदर पे ही पढ़ ले, लेकिन मस्जिदें तो करीब है, उसको तो आना ही है। अब अगर वो मस्जिद में आ रहा है तो बच्चों का खतरा है, बच्चों को ऐसे कैसे छोड़ के आए? आजकल जमाना कैसे कितने खराब चल रहे हैं, इंसान अपने बच्चों को, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ नहीं सकता, तो इंसान सोचता है कि बीवी बच्चों को साथ में रखूं। अब इंसान ये सोचता है कि अब मैं लेके जाऊंगा औरतों को, बच्चों को, तो पता चला मस्जिद में कोई इंतजाम ही नहीं है, तो इंसान क्या करता है? छोड़ देता है। छुट्टी लिया हुआ सैर तफरी, सैर तफरी गलत नहीं है, सिरू फिल अर्ज़ कहा गया, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि सैर तफरी करो, जायज है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन शरीयत पर अमल भी करना है। हम सैर तफरी के लिए निकले हुए हैं और पता चला कि नमाज से बिल्कुल बेसरोपा हो गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सैर तफरी के लिए आए हुए हैं, मस्जिद के अंदर निजाम होगा तो बाकायदा वो मर्द हजरात भी आएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद हाजा की खासियत है, यहाँ पे दोनों लोगों के लिए रास्ते हमवार हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो लोग आते हैं, कहीं रोहा से, कहीं और दीगर जगहों से लोग आते हैं, अगर वो अपने फैमिली के साथ आते हैं तो माशाल्लाह वो नमाज भी पढ़ते हैं, जमात के साथ भी पढ़ते हैं, औरतें भी माशाल्लाह पढ़ती हैं और मर्द भी पढ़ते हैं, और ये चीज शरीयत से साबित है। नबी के दौर में पढ़ते थे, और आज भी, आज समझ रहा है कितना आसान है। हम बार बार हवाला देते हैं ना मक्का मदीना का, मक्का मदीना, वहां पे क्या हो रहा है? अपनी हमारी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है कि जो लोग इस तरह के फतवे देते हैं उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। खाने काबा में जाओ, तवाफ भी जायज है, तवाफ भी हो रहा है, और बाकायदा नमाज भी हो रही है, नमाज भी पढ़ी जा रही है, सेशन अलग किया हुआ, बस जरूरत इस बात की है कि मर्द औरत एक साथ खड़े ना हो, बस ये मना किया गया है। बात समझ रहे हैं? उनका मामला सब कुछ अलग हो। अच्छा, मामला हमारा कहां तक गया गुजरा है? बाजारों में हमारी माँ और बहनें जाती हैं, हमारा मर्द जो होता है वो सऊदी, दुबई, कतर में काम कर रहा होता है, हजारों साल वहां पे होता है, 2-2 साल निकालता है, 3-3 साल निकालता है, घरों पे आता नहीं है। हमारी माँ और बहनें बाजारों में जाती है, वो भेजना गवारा करता है, मस्जिद में भेजना गवारा नहीं करता। मस्जिद में फितना होगा, बाजारों में फितना नहीं होगा, घूमने के लिए इजाजत है, यहाँ पे इजाजत नहीं है, कौन सी बात है? कहां तक का इंसाफ है साहब? शरीयत इस्लामिया के आईने में सोचो, शरीयत ने दीन भी दे के रखा हुआ है, दुनिया भी दे के रखा हुआ है। आप दीन में भी जाओ, दुनिया में भी जाओ, शरीयत पर भी अमल करो। दीन हमारा बहुत आसान है, अद्दीन युस्रुन। और इसी तरह दीगर शादी ब्याह के मसले में मैंने कितना मुश्किल बना दिया, दीन को ना समझने की वजह से कितना बड़ा। हम ये सोचते हैं किसी बच्चे की शादी करना हो तो इतने लाख रुपया होना चाहिए, बच्ची की शादी तो इतने लाख रुपया होना चाहिए। साहब कितना दीन आसान बना दिया है। दीन तो कहता है कि खैरुन निकाह ऐसा हुआ मऊना, कि सबसे बेहतर निकाह तो वो जिसमें कम खर्च हो। कम खर्च हो, जरूरी नहीं है कि साहब कि 10 लोग आए, 20 लोग आए, 50 लोग आए, इतने लोगों का बड़ा मजमा हो, आप बुला लें, बाप हो, भाई हो, दीगर चंद अफराद हो, आप आसानी के साथ शादी करें। दीन भी आपकी बनेगी, दुनिया भी बनेगी। बेराहरवी जो आजकल हम देख रहे हैं, जिनाकारी, बदकारी और न जाने क्या क्या जो समाज में आम है, इसकी अहम वजह होती है कि वक्त पे शादी नहीं करते, और वक्त पे शादी न करने की अहम वजह होती है कि हमारे पास दीन का फहम नहीं होता है। हमने निकाह को
مشکل بنایا ہوا ہے. تو ضرورت اس بات کی کہ عمر آپ دین کو سمجھیں. دین بڑا آسان ہے. دنیا میں رہتے ہوئے آپ دین پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں. آپ یہ بالکل نہ سمجھیں کہ دین میں انسان نکل گیا تو دنیا پہ عمل نہیں کر سکتا. ایسا بالکل نہیں ہے. شریعت اسلامیہ نے دونوں کو ساتھ میں جوڑ کر رکھا ہوا ہے اور اسی کا نام اسلام ہے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بہرحال ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بہرحال ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول کے بتائے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر